Hello everyone. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. As we have completed PA2 syllabus, so from today we are going to start PA2 revision. Right? You all have revision sheet of PA2? Yes or no? आप सबके पास revision sheet है PA2 की? Okay. See, those who don't have, please make sure आप आनंद स्टेशनरी से या फिर आपके फ्रेंड से जेरोक्स करवा लें. ओके. सी, हम चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट नहीं करेंगे. वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 11. ओके. चैप्टर नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे. ऑब्जेक्टिव आप सब मेरे साथ ही लिखेंगे एंड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, लॉजिकल क्वेश्चन आंसर्स हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो एंड देन एट होम you can write it. Okay, I am going to send the PDF. At that time you can write it. Understood? So let's start with the topic light, sound and force. Exercise A, choose the correct option. Number first, this is a luminous object. ये एक luminous object है. So dear kids, luminous object किसको कहते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, गिव आउट करते हैं. राइट? सो लेट्स सी दी ऑप्शन. ऑप्शन ए पेपर, ऑप्शन बी पेंसिल, ऑप्शन सी कैंडल और ऑप्शन डी चेयर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कैंडल, बिकॉज कैंडल ही एक ऐसा है जो लाइट प्रोड्यूस करता है. यस और नो? कैंडल इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट. सो टिक ऑप्शन सी. नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड वन. दिस इज अ नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट. ये एक नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट है. ऑप्शन ए बल्ब, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी कैंडल और ऑप्शन डी टॉर्च लाइट. सो डियर किड्स, कौन सा नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट है? यस, सन. सो राइट, सो टिक मार्क सन. थर्ड वन, objects that allow light to pass through them partially. Right? Light कैसे पास हो रही है? Only partially. So, which is the correct answer? Option A transparent, option B opaque, option C translucent or option D none of this. Yes, the correct answer is option C translucent. Now come to exercise B. Write true for the true statement and false for the false one. First one, sound is something that we hear. Yes, sound एक ऐसी चीज है ना जो हम सुन सकते हैं. So the statement is true. So write that true. Second one, a push or pull is called force. This is the statement is also correct. Push or pull, we called it force. So the statement is true. So write there true. Third one, sunglasses are an example of translucent object. See, translucent object कैसे होते हैं? जो सिर्फ लाइट को अलाव करते हैं पार्शियली, थोड़ा सा ही. सो सनग्लासेस भी एक उसका ही एग्जाम्पल है. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. फोर्थ वन, चेयर इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट. चेयर इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट. नो, चेयर क्या लुमिनस ऑब्जेक्ट है? लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइट गिव आउट करता है. नो, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. दैट्स वाई वी विल राइट false.
Fifth one. Opaque object do not cast a shadow. Opaque object के shadow नहीं बनते. See, opaque object क्या करता है? ब्लॉक करता है, लाइट को जाने के लिए अलाउ नहीं करता है. So उसका तो shadow बनेगा, बट यहाँ पे क्या लिखा है? Do not. So that's why the statement is false. So write there false. Okay. Now come to exercise C. Match the following. You are not going to match. आप ऐसे लिखोगे जैसे मैम ने लिखा है. Okay. First one is sun. So sun क्या है? Let's see the option. Find out. Find out everyone. अब आपको चैप्टर भी समझ में आ गया है. Sun is a natural luminous object, right? So write there. Fourth one, candle. Candle क्या है? Second one is candle. So candle is man-made, right? Man-made luminous object. Next is thin fabric. See, thin fabric क्या होगा? वो क्या करता है? लाइट को एकदम थोड़ा सा ही अलाउ करता है टू पास, राइट? सो द आंसर इज सेकेंड वन, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. देन फोर्थ वन, चेयर. चेयर इज yes, non-luminous object. And then the last is fifth one, clear glass. It is transparent object. It is transparent object. So first one, fourth answer. Second one, fifth answer. Third one, second answer. Fourth one, first answer. And then fifth one, the remaining third one. This much completed. So now let's come to short answer question. First one, what kind of shadow do translucent object cast? See, translucent object क्या करते हैं? They only allow partially, right? Partially, थोड़ी सी ही लाइट को अलाउ करते हैं आने के लिए. So that's why वो कैसे शेडो कास्ट करेगा, कैसे शेडो देगा? फेंट शेडो, राइट? एकदम लाइट फेंट शेडो. उसको हम क्या कहते हैं? फेंट कहते हैं. उसको क्या कहते हैं डियर किड्स? फेंट. सो व्हाट यू विल राइट इन द आंसर? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कास्ट अ फेंट शेडो. व्हाट यू विल राइट? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कास्ट a faint shadow. Write down. Now come to next page. Second one, what do you understand by source of light? Source of light से क्या समझ में आ गया? That objects that emit lights, they are called sources of light. Right? Object ऐसे जो object जो लाइट को इमिट्स करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट लुमिनियस ऑब्जेक्ट, राइट? बट जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट है दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट. सो द मीनिंग इज सेम. नेक्स्ट थर्ड वन, विच सरफेस विल हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? रफ और स्मूथ सरफेस, किसमें ज्यादा ग्रेटर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा? रफ सरफेस पे या स्मूथ सरफेस पे? सी, आपने एक्टिविटी में आपने देखा होगा कि जो रफ सरफेस में जो वो टॉय कार थी वो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन ले रही थी, राइट? बट जो टॉय कार स्मूथ सरफेस पे थे उसमें लेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो रहा था. सो दैट्स व्हाई द आंसर यू विल राइट लाइक दिस, रफ सरफेस हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Rough surface have
greater force of friction. Done. Next, fourth one. What is noise? Noise क्या है, dear kids? This definition we have already written in the long question answers. So what is noise? A loud and unpleasant sound. A loud and unpleasant sound is called noise. Understand? Now let's come to long answer question. See dear kids, long question answers and जो logical question answers हैं वो just मैं discuss कर रही हूँ, आपको घर पे होमवर्क में लिखने हैं, राइट? जब मैं PDF सेंड करूँ एट दैट टाइम आप अभी समझ लो, राइट? समझ लो एंड घर पे आपको लिखना होगा, ओके? फर्स्ट वन, हाउ इज फ्रिक्शन हेल्पफुल टू अस? कैसे फ्रिक्शन हमें हेल्पफुल है? सी इन द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ टेक्स्ट बुक वी हैव रिटन द 2 यूजेस ऑफ फ्रिक्शन. सो कैसे वो हमें हेल्पफुल है? हमें वॉक करने के लिए हेल्पफुल है, राइट? वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. किसके बीच में है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू अवर शूज एंड ground. Our shoes and ground. So you will write the answer like this. Friction prevents slipping or sliding off of things. It helps us in many ways. We are able to walk due to friction between the soles of our shoes and the ground. Next one. Why do we need to protect our ears from noise? क्यों हमें हमारे ears को protect करना चाहिए noise से? See dear kids, noise की definition आपको याद हो गई? Loud and unpleasant sound. So अब loud और unpleasant sound जब हम सुनेंगे तो हमारे noise तो खराब हो गए, right? So that's why हमें उससे क्या करना होगा? प्रोटेक्ट करना होगा. बट हाउ? कैसे प्रोटेक्ट करोगे? सो वी विल राइट सम वेज. एज नॉइज इज नॉट गुड फॉर अवर ईयर्स, वी शुड प्रोटेक्ट अवर ईयर्स फ्रॉम नॉइज. यस. वाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट? क्यों हमें नीड है? बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर अवर ईयर्स. बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर अवर ईयर्स. एंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें थोड़े रूल्स फॉलो करने होंगे, लाइक टॉक सॉफ्टली, लिसन टू द म्यूजिक एट लो वॉल्यूम, यूज टेलीविजन एट लो वॉल्यूम और प्ले टेलीविजन एट लो वॉल्यूम, डू नॉट ब्लो अननेसेसरीली हॉर्न. यस. नाउ कम टू एक्सरसाइज F. Name the following. First one, a loud and unpleasant sound. You have to give one word, right? One word आपको लिखना है. Loud and unpleasant sound को हम क्या कहते हैं? We called it noise, right? So write there noise, N-O-I-C-N-O-I-S-E, noise. Written. Next, object that can cast a dark shadow. ऐसे ऑब्जेक्ट जो डार्क शेडो कास्ट करता है. सो व्हाट इज दैट? वी कॉल्ड इट opaque object, right? So write there opaque object. Next one, object that can cast a faint shadow. Faint shadow मतलब एकदम थोड़ा सा शेडो देखने के लिए मिलता है. So what do we called it? Translucent object. Write there translucent object. Next, fourth one, object that do not emit light.
ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. राइट डाउन नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. I hope you all have understood this long question answers, short question answers, and you have written the name the following. Now come to next page. Everyone is on logical questions, right? So logical question answers भी मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, आप घर पे लिखोगे, right? जब मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी तब. अंडरस्टूड? फर्स्ट वन, ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म सारा सॉ लाइटनिंग फर्स्ट एंड देन हियर थंडर. व्हाई इज इट सो? जब थंडरस्टॉर्म हुआ, राइट, बिजली हुई, तब सारा ने क्या देखा कि लाइटनिंग फर्स्ट हुई एंड देन जो थंडर हुई वो उसके बाद हुई. व्हाई? क्यों ऐसा डियर किड्स? बिकॉज जो लाइट है वो इट ट्रेवल फास्टर देन साउंड. इसीलिए पहले लाइट हुई एंड देन हमको आवाज आया ऑफ बिजली का, हमें थंडरस्टॉर्म का आवाज आया. पहले लाइटनिंग होती है, फिर हमें थंडर सुनाई देता है, राइट? क्यों ऐसा होता है? Because light travel faster than sound. Understood? Because light travel faster than sound. Second one, Atul is like cycling to meet his grandmother who lives on a hill. Atul cycle harder while going uphill. He doesn't have to do so while returning. Why? See, अतुल जो है वो अपने ग्रैंडमदर को मिलने के लिए कहाँ पे गया है? ऑन द हिल. बिकॉज उसके ग्रैंडमदर कहाँ पे रहते हैं? हिल पे रहते हैं, राइट? वो भी कैसे गया है? बाय द हेल्प ऑफ साइकिल. साइकिलिंग करके गया है अतुल उसकी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए. अतुल साइकिल हार्डर वाई गोइंग अपहिल. अतुल को बहुत फोर्स अप्लाई करना पड़ा जब वो अपहिल हो रहा था, मीन्स जब वो क्लाइंब कर रहा था, हिल पे चढ़ रहा था तब, राइट? एट द टाइम ऑफ गोइंग ही हैज टू अप्लाई मोर फोर्स. क्यों ऐसा? बट वाइल इन रिटेलिंग, जब वो रिटर्न हो रहा था तब ऐसा नहीं था. क्यों डियर किड्स? बिकॉज जब वो जा रहा था तब उसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा, बिकॉज वो रफ सरफेस था ना. यस, बट वाइल रिटेलिंग दी हिल स्लोप ही डजंट हैव टू अप्लाई मोर फोर्स एंड वो सरफेस भी उतरने के टाइम पे हमें स्मूथ लगता है, राइट? सो ही डजंट हैव टू साइकिल हार्डर वाइल रिटर्निंग. So you will write the answer like this. While going uphill, Atul has to apply more force as compare while returning due to the hill slope. Sloping है ना, इसीलिए. So he does not have to cycle harder while returning. Done? I hope you all have understood first and second logical question answer. Good. Now let's come to number third. Mihir is not able to study for his test. मिहिर स्टडी नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली. यस, उसकी टेस्ट है फिर भी वो स्टडी नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली. क्यों ऐसा? लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड से वाई. सी, पिक्चर देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है डियर किड्स? ड्यू टू द लाउड नॉइज, उसने देखो अपने ईयर्स को बंद कर दिया है.
राइट? बिकॉज मुझे लगता है कि आउटसाइड से इतना नॉइज आ रहा है कि वो अपने स्टडी पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, उसकी टेस्ट पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, राइट? सो ड्यू टू द लाउड नॉइज फ्रॉम द लाउड स्पीकर और फ्रॉम द आउटसाइडर, फ्रॉम द आउटडोर, मिहिर इज नॉट एबल टू स्टडी फॉर हिज टेस्ट। पिक्चर को देख के ही हमें समझ में आता है कि मिहिर को कितनी प्रॉब्लम हो रही है कि वो अपने टेस्ट है कल, फिर भी वो स्टडी नहीं कर पा रहा है। ये सुनो, नहीं तो हमें टेस्ट होती है तो हम कितना स्टडी करते हैं, बट बिकॉज ऑफ द लाउड स्पीकर और बिकॉज ऑफ सम अनवांटेड नॉइज, अनवांटेड लाउड अनप्लीजेंट साउंड की वजह से मिहिर अपने स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है एंड ही इज गेटिंग डिस्टर्ब, ही इज नॉट एबल टू स्टडी फॉर हिज test. So here we have completed the revision of chapter number 11. I hope you all have understood this chapter. Now dear kids, जो questions बाकी हैं PA2 के पेपर में, प्लीज मेक श्योर कि आपने वो फिनिश कर लो आप लोग, राइट? आज होमवर्क में आपको ये रिवीजन शीट फिल करनी है ऑफ चैप्टर नंबर 11. Okay, today your homework is to complete this revision sheet of chapter number 11. Till then, bye kids, take care, have a good day.